Hello everyone, I am Dr. Achal Chandak and in this video I am going to talk about I.A. Richards. I.A. Richards is a very famous critic, belongs to New Criticism and he is also known as the father of New Criticism. I.A. Richards has laid down the foundation of New Criticism in his most famous book Practical Criticism. So in this video we will discuss about I.A. Richards' concept and his most important works. First of all, we will see the full name of I.A. Richards, that is Ivor Armstrong Richards. I.A. Richards has written several works, but in this video I will give you 4 important works of I.A. Richards. The first important work of I.A. Richards is Meaning of Meaning. Published in 1923. Second important work is Principles of Literary Criticism. Published in 1924. Third important work is Practical Criticism. Published in 1929. The subtitle of this work is A Study of Literary Judgment. Subtitle is very important because in the UGC NET they ask the questions from subtitles of the works. Now the fourth work is Philosophy of Rhetoric. This work was published in 1936. So these are 4 important works of I.A. Richards. Please इन सभी वर्क को आप इसी ऑर्डर में रिमेंबर रखिएगा बिकॉज नेट में क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय I.A. Richards. The first concept given by I.A. Richards is about 4 kinds of meaning. 4 kinds of meaning is given in his most important book Practical Criticism. Discuss 4 kinds of meaning. The first meaning is sense, second is feeling, third is tone, and fourth is intention. Now, sense, feeling, tone, intention, according to I.A. Richards, these 4 elements make the complete meaning of any text or any piece of literature, especially about poetry. ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? एक टोटल मीनिंग बनाते हैं. अगर आपको किसी भी पोएम का टोटल मीनिंग पता करना है, so first of all you have to know about these 4 things according to I.A. Richards. Now, what is sense? What is feeling, tone, and intention? Sense is what to convey. जब भी कोई राइटर कोई वर्क लिखता है तो वो उस वर्क के थ्रू आपको क्या कन्वे करना चाहता है, उसका सेंस क्या है, उस चीज को लिखने में वो आप तक कौन सी बात को पहुंचाना चाहता है, दैट इज सेंस. फीलिंग इज एटीट्यूड टू सब्जेक्ट. एटीट्यूड टू सब्जेक्ट मीन्स वो जो प्रेजेंट कर रहा है, जो वर्क आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, उस वर्क में जो सब्जेक्ट है उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, मीन्स उसका इमोशन क्या है. इट इज समथिंग अबाउट इमोशन. वो किस इमोशन के साथ आपके सामने उस वर्क को प्रेजेंट कर रहा है. एंड फॉर प्रेजेंटिंग द इमोशंस the poet uses poetic devices.
पोएट क्या यूज करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं उनके इमोशंस को अपने रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। द नेक्स्ट इज टोन। टोन इज एटीट्यूड टू रीडर। वो जो भी वर्क लिख रहा है उस वर्क में उसकी टोन क्या है अपने रीडर के लिए, उसका नजरिया क्या है, वो किस नजरिए से अपनी बात को रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है, दैट इज टोन। एंड इंटेंशन इज पर्पस। पर्पस, वो किस उद्देश्य से उस वर्क को लिख रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो वह वर्क क्यों लिख रहा है, दैट इज इंटेंशन। So sense, feeling, tone and intention make a total meaning, and these four elements are very important and you have to remember these things in this order। आपको इसको भी chronological order में ही याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी नेट में कई बार क्वेश्चंस बनाए गए हैं। So chronology में ही आपको इसको remember रखना है। The next concept given in this book practical criticism is stock response। Stock response, what is stock response? Stock response is based on your prior experience। Based on prior experience। आप जब भी कोई वर्क पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं, व्हाट यू डू, यू कनेक्ट द टेक्स्ट टू योर प्रायर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल मीनिंग ऑफ दैट टेक्स्ट। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आप टेक्स्ट को जोड़ते हैं और तब वो मीनिंग क्या बन जाता है, वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। एंड आई.ए. रिचर्ड्स बोलते हैं कि दैट इज मिसरीडिंग। दैट इज मिसरीडिंग क्योंकि वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो एक मिसरीडिंग है एंड दैट मीनिंग इज बेस्ड ऑन योर प्राइवेट जजमेंट। वो जो रीडिंग है वो किस पर बेस्ड हो गई, आपके प्राइवेट जजमेंट पर हो। तो स्टॉक रिस्पॉन्स वो होता है जब आप किसी वर्क को अपने प्रायर एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट यू ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल मीनिंग, दैट इज स्टॉक रिस्पॉन्स। The third concept given by I.A. Richards in his book Principles of Literary Criticism। इस बुक में इन्होंने थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, he has discussed about two types of languages। The first language is scientific language and the second language is emotive language। Scientific language and emotive language। Now scientific language और emotive language क्या होते हैं? Scientific language वो language होती है which we use in our day-to-day life। और simple statement और direct statement which make sense। ऐसा statement जो कैसे sense बनाता है, जो सिंपल होता है उसी से वो अपना सेंस बनाता है और वो वर्ड के मीनिंग देता है। वी कैन से लिटरल मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, लिटरल मीनिंग, दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोएटिक लैंग्वेज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिस्टिक लैंग्वेज। What is poetic or artistic language? Emotive language is used by poets, by authors। इनके द्वारा ये लैंग्वेज यूज की जाती है। यहाँ पर पोएट्स क्या डालते हैं, अपने इमोशंस डालते हैं और इमोशंस को डालने के लिए व्हाट दे यूज पोएटिक डिवाइसेस। सो वो जो लैंग्वेज है वो पोएटिक लैंग्वेज इसीलिए कही जाती है क्योंकि उसमें इमोशंस डालने के लिए दे यूज पोएटिक डिवाइसेस। For example, if I say that girl is very beautiful, अगर मैं किसी गर्ल की तारीफ करना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ that girl is very beautiful,
व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट. वह लड़की सुंदर है. मैंने एक सिंपल तरीके से बोल दिया. दैट इज व्हाट? दैट इज द साइंटिफिक लैंग्वेज. अगर हम अब इसी बात को इमोटिव लैंग्वेज में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? दैट गर्ल इज लाइक मून. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दैट गर्ल इज लाइक मून. द सेम मीनिंग कि वह लड़की बहुत सुंदर है. क्योंकि मून है तो मून का मतलब वही हुआ कि वो लड़की सुंदर है. लेकिन यहाँ पर हमको मीनिंग को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एट द वेरी फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट मून. आपको सबसे पहले मून के बारे में पता करना पड़ेगा कि मून सुंदर है, इसीलिए वह लड़की भी सुंदर है. दैट गर्ल इज लाइक मून. यहाँ मैंने लड़की को मून नहीं बोला है, मैं बता रही हूँ कि वो लड़की मून की तरह है, मतलब वो लड़की भी सुंदर है. लेकिन व्हाट आई डिड हियर? आई यूज्ड हियर सिमिली. मैंने यहाँ पर सिमिली का यूज किया और मैंने यहाँ पर इमोटिव लैंग्वेज का यूज किया. सो यहाँ पर सीधे स्टेटमेंट नहीं दिए जाते हैं. ये लैंग्वेज पोएटिक होती है, आर्टिस्टिक होती है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि इमोशनल वे में प्रेजेंट करने के लिए कुछ हटकर शब्दों का यूज किया जाता है. दैट इज इमोटिव लैंग्वेज. सो in this video we have discussed the concepts given by I.A. Richards. In the next video I will discuss another new critic. Till then, enjoy the life. Thank you.